AIA गेट 2020 ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये एलाइड सब्जेक्ट्स का शॉर्ट पेपर है। एनाटॉमी क्वेश्चन नंबर 1, thoracic duct drains the following areas except A. left lower limb, B. left upper limb, C. right lower limb, D. right upper limb, and the answer is right upper limb. ये BD चौरसिया का रेफरेंस है। thoracic duct drains lymph from both lower limbs, abdominal cavity, left side of thorax, left upper limb and left side of head and neck. So left lower limb, right lower limb एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, ये स्टेटमेंट सही है, बट राइट अपर लिम्ब ये ऑप्शन जो है वो गलत है, बिकॉज बोथ लोअर लिम्ब एंड लेफ्ट अपर लिम्ब जो है वो थोरेसिक डक्ट से ड्रेन होता है, जबकि राइट अपर लिम्ब वो लिम्फेटिक डक्ट से ड्रेन होता है। इसलिए राइट अपर लिम्ब के लिए लिम्फेटिक डक्ट है, ना कि थोरेसिक डक्ट। Diagram showing parts of the body that drain into the right lymphatic duct. Thoracic duct. It is the largest lymphatic vessel in the body. ये लगभग 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है and it extends from upper part of the abdomen to the lower part of the neck. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, crossing the posterior and superior part of mediastinum. It has a beaded appearance because of the presence of many valves in its lumen. इस lumen में बहुत सारे valves होते हैं, जिससे कारण की beaded यानी कि मोती के जैसा, धागे में जैसे मोती होता है उस तरह का इसका appearance होता है। ये typical figure है, नीचे सिस्टर्ना चाइली से ascend करता है एंड फिर ऊपर की तरफ जाता है। It begins as a continuation of upper end of the cisterna chyli near the lower border of T12. तो T12 के का वर्टिब्रा जो है उसका लोअर बॉर्डर से ये ऑरिजिनेट होता है। इट एंटर्स द थोरेक्स थ्रू द ऑर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। T12 पे ऑर्टिक ओपनिंग है, उसी के साथ थोरेसिक डक्ट भी आता है। इट एसेंड्स थ्रू द पोस्टीरियर मेडिस्टिनम फ्रॉम लेवल T12 टू T5 वे इट क्रॉसेस फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट साइड। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है T5 वर्टिब्रा के लेवल पे। Then it courses through the superior mediastinum along the left edge of esophagus and reaches the neck. In the neck, it arches laterally at the level of the transverse process of C7, यानी cervical prominence C7 इसके transverse process के लेवल पे जाता है। Finally, it ends by opening into the angle of junction between the left subclavian and left internal jugular vein. तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन दोनों का जो जंक्शन होगा वहाँ पर ये एंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, चार्कोट्स आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज इज अ ब्रांच ऑफ ए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बी एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, सी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, डी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंड द आंसर इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। Charcot's artery of cerebral hemorrhage, the largest branch of anterolateral central branches of middle cerebral artery. तो ये middle cerebral artery का ब्रांच है। ये सर्कल ऑफ विलिस है और चार्कोट आर्टरी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का पोर्शन है। आगे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, बीच में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पीछे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। Question number 3, uterine artery is a branch of which artery? A. Abdominal aorta, B. Common iliac, C. External iliac, D. Internal iliac, and the answer is internal iliac. The uterine artery is a branch of anterior division of internal iliac artery. So जो पिंक पोर्शन है वो इंटरनल इलियक आर्टरी है, उसका उसी का ब्रांच वजाइनल आर्टरी भी है और उसी का ब्रांच यूट्राइन आर्टरी भी है। सो इंटरनल इलियक आर्टरी सबसे लास्ट में लिखा है यूट्राइन, ब्रैकेट में 1 लीन फीमेल, तो यूट्राइन जो आर्टरी जो है वो इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच है। ओवेरियन आर्टरी एब्डोमिनल ऑर्टा का ब्रांच है, जबकि यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी ये दोनों इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच है। Question number 4, transpyloric plane passes through A.
body of first lumbar vertebra near its lower border, B, body of second lumbar vertebra near its upper border, C, midway between sternal angle and pubic symphysis, D, tip of 10th rib. And the answer is body of first lumbar vertebra near its lower border. The transpyloric plane, it crosses through the body of vertebra L1 near its lower border. यानी कि L1 का जो लोअर बॉर्डर है उसके थ्रू वो जो लाइन क्रॉस करता है दैट इज ट्रांसपैलोरिक प्लेन, और ये स्टमक का पैलोरस के थ्रू भी क्रॉस करता है. तो ये ट्रांसपैलोरिक प्लेन है. जो 9 क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन होता है उसमें एक प्लेन जो है वो ट्रांसपैलोरिक प्लेन है. क्वेश्चन नंबर 5. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, saphenous nerve is a branch of femoral nerve. Statement 2, extensor digitorum brevis is present on the dorsum of foot. These are the options. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And the answer is both statement 1 and statement 2 are correct. The saphenous nerve, root value L3 L4, is a branch of the posterior division of femoral nerve. तो ये स्टेटमेंट सही है. ये saphenous nerve है जो कि femoral nerve का ब्रांच है. The branches of distribution of femoral nerve. Dorsum of foot contains a extensor digitorum brevis, while dorsum of hand has no muscle of its own. So जो फुट है dorsum of foot वहाँ extensor digitorum brevis होता है. ये एक्सटर्नल digitorum brevis है. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following muscle is a flexor of elbow joint despite being supplied by an extensor nerve? Option A, anconeus, B, brachioradialis, C, supinator, D, triceps. And the answer is brachioradialis. Flexion is brought about, इसमें इसी में है ब्रैकियोरेडियलिस, यानी ब्रैकियोरेडियलिस के थ्रू फ्लेक्शन होता है. वेयर्स रेडियल नर्व सप्लाइज ब्रैकियोरेडियलिस. तो रेडियल नर्व सारे एक्सटेंसर्स को करता है बट ब्रैकियोरेडियलिस जो है वो फ्लेक्सर मसल है और उसको रेडियल नर्व सप्लाई करता है. क्वेश्चन नंबर 7. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. Assertion: pain due to uterine calculus is referred to the anteromedial aspect of thigh. Reason: common innervation of lower ureter and inner side of the upper part of the thigh is crossed through genitofemoral nerve. These are the option. Assertion is false but reason is true. Assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are true but and reason is correct explanation of A. D, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. And the answer is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. यूटेरिक कॉलिक, यूटेरिक स्टोन और कैलकुलस, इसमें जो पेन होगा वो इनर थाई में जाता है. सो इनर साइड ऑफ द थाई. पेन इज रेफर्ड टू द क्यूटेनियस एरिया, यानी कि जो स्किन का एरिया है क्यूटेनियस नर्व के थ्रू, क्यूटेनियस एरिया इनर्वेटेड बाय सेगमेंट्स मेनली T11 to L2 विच ऑल्सो सप्लाई द यूरेटर. तो वही नर्व जो यूरेटर है उसको सप्लाई करता है और सेम रूट वैल्यू का नर्व जो है वो थाई में इनर थाई को सप्लाई करता है. इसलिए जो कैलकुलस का पेन होता है वो रेफर करता है. सो यूटेरिक कॉलिक, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सीवियर पेन ड्यू टू यूटेरिक स्टोन और कैलकुलस which causes a spasm of the ureter. This pain starts in the loin and radiates down the groin, the scrotum or the labium major and the inner side of the thigh. ureter सप्लाई होता है जेनेटोफेमोरल नर्व के थ्रू. जेनेटोफेमोरल नर्व का रूट वैल्यू है L1 L2 वेंट्रल डिवीजन. उसका बेसिकली 2 ब्रांच होता है, फेमोरल ब्रांच और जेनेटल ब्रांच, इसलिए इसको जेनेटल फेमोरल नर्व बोलते हैं. ये रीनल पेन है. जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है वो रीनल पेन है, यानी कि जब स्टोन किडनी में रहेगा तो वो ब्लू शेडेड एरिया में पेन होगा.
यही पेन अगर यूरेटर में रहेगा, जो स्टोन है वो यूरेटर में रहे, तो जो यूरेटर का जो लेंथ है जिस रीजन में जा रहा है उसी एरिया में पेन भी होगा। सो जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो यूरेटर में कैलकुलस के कारण है। क्वेश्चन नंबर 8, द टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए फेशियल नर्व, बी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, सी हाइपोग्लॉसल नर्व, डी वेगस नर्व। एंड द आंसर इज फेशियल नर्व। Taste fibers from the anterior 2/3 of the tongue except circumvallate papilla. Circumvallate papilla एंटीरियर रीजन में होता है बट उसको 7th नर्व सप्लाई नहीं करता है, बट बाकी जो एरिया है एंटीरियर 2/3 का उसको फेशियल नर्व सप्लाई करता है। तो टंग बेसिकली दो पार्ट में है, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। एंटीरियर 2/3 का जो सेंसरी पोर्शन है उसको लिंगुअल नर्व सप्लाई करता है, टेस्ट को 7th नर्व करता है, दैट इज़ फेशियल नर्व, एक्सेप्ट वैलेट पेपिला। वैलेट पेपिला को ही सर्कमवैलेट पेपिला भी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर 1/3 का सेंसरी पोर्शन और टेस्ट दोनों को 9th नर्व सप्लाई करता है, दैट इज़ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और वैलेट पेपिला को भी। तो सीक्वेंस में देखा जाए तो 5, 7, 9, 10, 11, 12 ये सारे टंग को सप्लाई करते हैं, जिसमें कि फिफ्थ का भी 3 ब्रांच होता है, पहला ऑप्थेल्मिक, दूसरा मैक्सिलरी, तीसरा लिंगुअल ब्रांच और मैंडिबुलर ब्रांच। तो लिंगुअल ब्रांच जो कि सेंसरी को सप्लाई करता है, फिर 7th दैट इज़ फेशियल नर्व, उसमें कॉर्डा टिम्पेनी है जो कि टेस्ट को सप्लाई करता है, ये दोनों एंटीरियर 2/3 हो गया। 9th पोस्टीरियर 1/3 यानी ग्लोसोफेरेंजियल फॉर बोथ टेस्ट एंड सेंसरी। 10th पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन का जो टंग है उसको सप्लाई करता है। 11 पैलेटोग्लॉसस मसल को, एंड 12 सारा मोटर फंक्शन को, ऑल एक्सटेंसिक एंड इंटेंसिक मसल्स एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस, क्योंकि पैलेटोग्लॉसस को 11th करता है। फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, फीचर्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम इंक्लूड ए हाइपोग्लाइसीमिया, बी हाइपोटेंशन, सी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, डी थिकनिंग ऑफ स्किन। And the answer is salt and water retention. कशिंग सिंड्रोम, इसमें थिनिंग ऑफ स्किन होता है, यानी कि जो स्किन है वो बहुत पतला होता है, जिससे कारण कि इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। हाइपरटेंशन बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दैट इज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये लाइन सही है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है बल्कि हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपोटेंशन नहीं होता है बल्कि हाइपरटेंशन होता है। एंड थिकनिंग ऑफ स्किन नहीं होता है बल्कि थिनिंग ऑफ स्किन होता है। इंजरीज जो होता है वो बहुत कॉमन हो जाता है कशिंग सिंड्रोम में। ये पॉट बेलिड और पर्पल स्टायर, ये टिपिकल जो कशिंग सिंड्रोम है इसका सिम्टम है। फैट डिपोजिशन इन अपर एब्डोमेन, थॉरेक्स एंड फेस, इसको मून फेसेस भी कहते हैं। सो मून फेस विथ थिन हैंड। कशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू हाइपरसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पार्टिकुलरली कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो एड्रिनल के कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। तो इसका 2 ऑरिजिन है, एक पिट्यूटरी ऑरिजिन, एक एड्रिनल ऑरिजिन। अगर पिट्यूटरी ऑरिजिन रहा यानी प्रॉब्लम जो है वो पिट्यूटरी में है तो उस कंडीशन को कशिंग डिजीज़ कहते हैं। बट प्रॉब्लम अगर एड्रिनल ग्लैंड में है तो उस कंडीशन को कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। यानी अगर ACTH का प्रॉब्लम है तो वो पिट्यूटरी ऑरिजिन का है, और अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है तो वो एड्रिनल ऑरिजिन का है, तब उसको कशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। Question number 10. Regarding composition of bile, the gallbladder bile when compared to liver, bile has A. more water, B. more bile salts, C. more calcium, D. more bicarbonate. These are the options, and the answer is B and C only. More bile salt and more calcium. तो डिफरेंस बिटवीन लीवर बाइल एंड गॉल ब्लैडर बाइल, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वाटर कंटेंट बाइल में ज़्यादा होता है, लीवर बाइल में, इन कंपेरिजन टू
गॉल ब्लैडर बाइल में गॉल ब्लैडर का जो बाइल होता है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बाइल सॉल्ट अगर गॉल ब्लैडर कंपेरिजन में देखा जाए तो कम होता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है गॉल ब्लैडर बाइल में। एंड बाइकार्बोनेट लीवर में ज़्यादा होता है, लीवर बाइल में। सो अगर लीवर बाइल और गॉल ब्लैडर बाइल का बात करें तो बाइल सॉल्ट एंड कैल्शियम ये दोनों गॉल ब्लैडर बाइल में ज़्यादा होता है, जबकि वाटर और बाइकार्बोनेट कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Given below are two statements. Assertion A. ADH is a water insoluble hormone. Reason R. ADH is a polypeptide and needs receptors on the cell membrane to work on DCT. These are the options. And the answer is assertion is false but reason is true. ADH पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है। जो स्टेरॉइड रहता है वो वाटर इनसॉल्युबल रहता है, पेप्टाइड नहीं। सो एडीएच जो है वो वाटर इनसॉल्युबल नहीं है बल्कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच इन एक्वापोरिन। एंटीडायोटिक हार्मोन इंक्रीजेज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल and collecting ducts by stimulating the water channels called aquaporin. ADH combines with vasopressin V2 receptor in the tubular epithelial membrane. तो इसको रिसेप्टर्स का ज़रूरत है। ADH is a polypeptide and needs receptor on the cell membrane to work on DCT. ये स्टेटमेंट सही है। Question number 12. Given below are two statements. Statement 1. Basophils release bradykinin, secretin, major basic protein and heparin. Statement 2. Eosinophils release bradykinin, secretin, major basic protein and heparin. These are the options. And the answer is both statement 1 and statement 2 are incorrect. So major basic protein eosinophil से secrete होता है, जबकि हेपेरिन और ब्रैडिकाइनिन बेसोफिल से होता है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों सेक्रेट करता हो, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। जबकि सेक्रेटिन सेक्रेट होता है फ्रॉम एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13. बोन ट्यूमर arising from epiphysis is A. chondrosarcoma, B. Ewing sarcoma, C. giant cell tumor of bone, D. osteosarcoma. And the answer is giant cell tumor of bone. Giant cell tumor of bone, it originates from epiphysis of long bones. Giant cell tumor of bone is also called osteoclastoma. Giant cell tumor of bone or GCTOB, it is a benign tumor characterized by the pressure of multinucleated giant cells that is osteoclast like cell. तो osteoclast के जैसा होता है। giant cells in a giant cell tumor of bone. Site of origin of common bone tumor like Ewing sarcoma, उसका origin जो है वो डायफाइसिस है। osteoclastoma that is giant cell tumor epiphysis and osteosarcoma मेटाफाइसिस। ये एक फोटो है हर्षमोहन का। एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ कॉमन प्राइमरी बोन एंड कार्टिलेज ट्यूमर। तो जो ग्रीन सेक्शन है दैट इज़ बेनाइन एंड जो राइट सेक्शन है दैट इज़ मैलिग्नेंट। तो बेनाइन में ऑस्ट्रॉइड ऑस्टियोमा जो कि डायफाइसिस में है। फिर नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा ये मेटाफाइसिस में है। फिर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा जायंट सेल ट्यूमर ये एपिफाइसिस में है जो कि क्वेश्चन में था। फिर कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा मेटाफाइसिस एंड अगेन इकोकॉन्ड्रोमा एंड एडेमेंटिनोमा डायफाइसिस है। कॉन्ड्रोसार्कोमा डायफाइसिस, ऑस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस, एविंग सार्कोमा एंड लिम्फोमा डायफाइसिस। सो एपिफाइसिस में जो ऑप्शन में था वो एक ही है दैट इज जायंट सेल ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 14. Among the following, what are the changes seen in iron deficiency anemia? A. Serum iron decreases and iron binding capacity decreases. B. Serum iron decreases and iron binding capacity increases.
C. Serum iron decreases and iron binding capacity normal. D. Serum iron increased and iron binding capacity decreased. And the answer is serum iron decreased and iron binding capacity increases. Biochemical finding आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में द सीरम आयरन लेवल इज़ लो. तो जो एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, इसलिए जो ब्लड में आयरन है उसका लेवल कम ही रहेगा. सो सीरम आयरन लेवल इज़ लो. एंड टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी, जो आयरन बाइंड करना है उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है क्योंकि नीड ज़्यादा है. सो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी दैट इज TIBC इज़ हाई. तो नॉर्मल वर्सेस आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया. नॉर्मल में जो सेल है वो नॉर्मल जो एवरेज सेल होता है दैट इज़ नॉर्मल डेड सेल. जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया रहेगा तो वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है इसलिए हाइपोक्रोमिक होगा. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक डेड सेल. क्वेश्चन नंबर 15. लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द पेयर है विथ कार्सिनोजेनिक फैक्टर वर्सेस हिस्टोलॉजिकल टाइप. A. Solar radiation. B. Hereditary. C. Human papilloma virus. D. Benzidine. List 2. Retinoblastoma, bladder cancer, basal cell carcinoma, carcinoma of cervix. These are the options. And the answer is solar radiation, basal cell carcinoma, hereditary, retinoblastoma, human papilloma virus, carcinoma of cervix, Benzidine, bladder cancer. सोलर केरेटोसिस, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा है जो कि सन के कारण होता है. इट इज़ सोलर और सन इंड्यूस्ड. और एक्टिनिक दैट इज इंड्यूस्ड बाय ए वैरायटी ऑफ रेज. सो बेसल सेल कार्सिनोमा जो है वो सन इंड्यूस्ड है, सो सोलर. रेटिनोब्लास्टोमा, अबाउट 40% ऑफ रेटिनोब्लास्टोमास आर फैमिलियल यानी कि जेनेटिक एंड शो एन ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. सो रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो जेनेटिक कॉज है. फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस दैट कॉजेज सर्वाइकल कैंसर एंड बेंजिडीन दैट कॉजेज ब्लैडर कैंसर. ये टिपिकल बेसल सेल कार्सिनोमा है और जनरली इसी रीजन पे होता है. बेसल सेल कार्सिनोमा इज ऑल्सो कॉल्ड रोडेंट अल्सर. द ट्यूमर enlarges in size but burrowing and by destroying the tissues locally like a rodent and hence the name rodent ulcer. तो जैसे चूहा कुतरते हुए अंदर तरफ जाता है उस तरह से इसमें भी बरो बनता है, that is called rodent ulcer. Proliferation of basaloid cell. Basaloid cell means resembling basal layer of epidermis. ये मिलता है basal cell carcinoma में. A slow growing small nodule undergoes central ulceration with pearly rolled margin. जो साइड का मार्जिन होता है वो ग्रेइश होता है, so pearly rolled margin. इसमें एक कंडीशन मिलता है that is palisading, जिसमें कि जो सेल्स होते हैं वो एक लाइन से अरेंज होते हैं. The dermis contains irregular masses of basaloid cells having characteristic peripheral palisaded appearance of the nuclei. तो वो एक लाइन से अरेंज्ड है. इसमें क्लेफ्ट में मिलता है यानी कि बीच में गैप रहेगा. रेटिनोब्लास्टोमा, इट इज़ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ऑक्यूलर ट्यूमर इन चिल्ड्रेन. तो चिल्ड्रेन में जो आई का ट्यूमर है उसमें ये मोस्ट कॉमन है. मे बी प्रेजेंट एट बर्थ और रिकोगनाइज्ड इन अर्ली चाइल्डहुड बिफोर द एज ऑफ 4 years. तो या तो ये कॉन्जेनिटल रहेगा या फिर 4 साल तक होते होते सिम्टम आ जाएगा जिससे कि पहचान सकते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा है. अबाउट 40% आर फैमिलियल दैट इज जेनेटिक. इट इज ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट by retinoblastoma susceptibility gene that is RB gene located on chromosome 13. तो chromosome 13 पे RB gene present होता है. Clinically the child presents with leukocoria that is white pupillary reflex. उसमें जो आई है उसमें जो रिफ्लेक्स आएगा वो वाइट कलर का शो होता है. स्पेशली जब कोई फोटोग्राफ खींच रहे हैं वैसे में एक वाइट कलर का सर्कल रहता है आँख में. दैट इज ल्यूकोकोरिया इन रेटिनोब्लास्टोमा. Leukocoria. It is also called white eye or cat's eye. An abnormal pupillary reflex more clearly seen after photography. When light is reflected by white tumor, the view of the red retina is blocked. इसलिए वो white दिखता है.
फंडोस्कोपी फाइंडिंग ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, ऊपर कॉर्नर में जो वाइटिश है दैट इज ट्यूमर। रेटिनोब्लास्टोमा appears as a white mass within the retina। तो इसका दो कंडीशन है, पहला एंडोफाइटिक ट्यूमर एंड दूसरा एक्सोफाइटिक ट्यूमर। तो व्हेन इट प्रोट्रूडेड इनटू द विट्रस, यानी कि विट्रस ट्यूमर की तरफ अगर ये प्रोट्रूड हो रहा है तो उसको एंडोफाइटिक ट्यूमर कहेंगे। एंड इट ग्रोज बिटवीन रेटिना एंड द पिगमेंट एपिथेलियम, तो रेटिना और पिगमेंट एपिथेलियम के बीच में अगर ये ग्रो हो रहा है तो इसको एक्सोफाइटिक ट्यूमर कहेंगे। Retinoblastoma showing white mass growing extensively within the posterior part of the eye। तो ये विट्रस ट्यूमर में, इसलिए इसको एंडोफाइटिक ट्यूमर कहेंगे। The tumor cells are characteristically arranged in rosettes। तो जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज रोजेट, वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, chemical mediators of inflammation are derived from cells of plasma proteins। Statement 2, leukotrienes LTC4, LTD4, LTE4 and thromboxane A2 causes vasodilation। These are the options, and then says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। Mediators of inflammation, these mediators are released either from the cells or are derived from plasma proteins। तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो केमिकल मेडिएटर्स हैं वो सेल से या फिर प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव होते हैं। सो केमिकल मेडिएटर्स और इन्फ्लेमेशन आर डिराइव फ्रॉम सेल और प्लाज्मा प्रोटीन्स। फिर ल्यूकोट्राइन, जिसको शॉर्ट में LT बोलते हैं, तो ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4 have common actions by causing smooth muscle contraction and thereby induce vasoconstriction। तो इसके कारण vasoconstriction होता है। थ्रोम्बोक्सेन A2 that is TXA2, इसके कारण भी vasoconstriction होता है, it is a vasoconstrictor। सो जो स्टेटमेंट है दैट ल्यूकोट्राइन LTC4, LTD4, LTE4 एंड थ्रोम्बोक्सेन A2 causes vasodilatation, ये स्टेटमेंट गलत है। वैसोडाइलेटेशन नहीं होता है बल्कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एपोप्टोसिस इज इन आइसोलेटेड सेल्स इज A एक्टिवेशन, B डेथ, C डीजेनरेशन, D रीजेनरेशन। एंड द आंसर इज डेथ। Apoptosis, it is a programmed cell death। Apoptosis is a form of coordinated and internally programmed cell death। तो डेथ है। Apoptosis means falling off or dropping off as that of leaves or petal। जैसे पत्ता झड़ता है या फिर पेटल्स गिरते हैं, इसको सेल सुसाइड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which renal stones are characteristically radiolucent? A cystine stones, B oxalate stones, C phosphate stones, D uric acid stones। and the answer is uric acid stones। uric acid stones radiolucent। नेफ्रोलिथेसिस, इसमें बेसिकली 5 टाइप का होता है स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स, फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, जैंथिन स्टोन्स। कैल्शियम स्टोन्स 75%, फॉस्फेट स्टोन्स 15%, यूरिक एसिड स्टोन्स 6%, सिस्टीन स्टोन्स 2% एंड जैंथिन स्टोन्स या फिर मिसलेनियस करके लिखा आता है दैट इज लेस देन 2%। कैल्शियम स्टोन्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मलबेरी कैलकुलाई, इट इज़ कॉमनेस्ट टाइप, सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि लगभग 75% केसेस में होता है। साइज वाइज देखा जाए तो अवॉइड हार्ड कैल्शियम के कारण, यूजुअली स्मॉल, जो स्मॉल रहेगा वो जनरली मल्टीपल होता है। रेडियो ओपेक, यानी कि जब एक्सरे में देखेंगे तो वो क्लियर दिखता है स्टोन। डार्क ब्राउन ड्यू टू ओल्ड ब्लड पिगमेंट डिपोजिशन, कवर्ड विथ शार्प प्रोजेक्शंस, शार्प के कारण इट मेक्स किडनी ब्लीड, जिसके कारण कि हेमेचूरिया होगा। ऑकर्स इन इन्फेक्टेड यूरिन एंड कंटेंस अल्टरनेट लेयर्स ऑफ कैल्शियम एंड बैक्टीरियल वेजिटेशन, इसलिए ये 2 कलर का दिख रहा है क्योंकि अल्टरनेट लेयर है कैल्शियम का और वेजिटेशन का। फॉस्फेट स्टोन्स,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स और स्ट्रोवाइट। अबाउट 15% ऑफ जो यूरिनरी कैल्कुलाई है वो इसके कारण है। स्मूथ होगा, राउंड होगा, इरेगुलर इन शेप, येलो, वाइट और ग्रे इन कलर, रेडियो ओपेक, टेंड टू ग्रो इन अल्कलाइन यूरिन, grows within the major and minor calyces and slowly takes shape of the renal pelvis। और जब इस तरह का शेप ले लेता है renal pelvis का तब उसको स्ट्रोवाइट कहते हैं। produces recurrent UTI and hematuria and slowly damage the renal parenchyma। जैसे जैसे वो एरिया में बढ़ते जाता है तो renal parenchyma को भी हार्म करता है। यूरिक एसिड एंड यूरेट स्टोन, ये लगभग 6% ऑफ लोगों ऑफ पीपल में होता है। स्मूथ, मल्टीपल, small, yellowish brown, radiolucent, on cut section they show laminated structure, it occurs in acidic urine। तो ये acidic urine है में होगा और रेडियोल्यूसेंट होता है, यानी कि जो हम एक्सरे में देख रहे हैं तो ये नहीं आता है। सिस्टीन स्टोन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का कारण होगा, सिस्टीन्यूरिया का कारण। लेस देन 2% ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई, स्मॉल, राउंडेड, स्मूथ, येलोइश एंड वैक्सी ड्यू टू सिस्टीन्यूरिया, जिसमें कि सिस्टीन बॉडी मेंटेन नहीं करता बल्कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। मल्टीपल, रेडियो ओपेक ड्यू टू सल्फर, इसमें सल्फर प्रेजेंट है इसके कारण रेडियो ओपेक होता है। ऑकर्स इन यंग गर्ल्स एट प्यूबर्टी। जैंथिन स्टोन्स, लेस देन 2% ऑफ स्टोन्स से इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी ऑफ एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म, जैंथिन के कारण। एग्जाम्पल हेरिडिटरी जैंथिन्यूरिया, जिसमें कि यूरिन में जैंथिन आता है। बिग रेड इन कलर एंड रेडियोल्यूसेंट, तो ये भी रेडियोल्यूसेंट होता है। तो रेडियो ओपेक कैल्शियम स्टोन, फॉस्फेट स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन, एंड रेडियोल्यूसेंट यूरिक एसिड स्टोन, जैंथिन स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 19, given below are two statements. Statement 1, retinoblastoma is the most common intraocular tumor of children. Statement 2, retinoblastoma gene has been identified as 14 band on the long arm of chromosome 10. These are the options. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Retinoblastoma, this is the most common malignant ocular tumor in children. तो रेटिनोब्लास्टोमा इज द मोस्ट कॉमन इंट्राओक्यूलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है, रेटिनोब्लास्टोमा ससेप्टिबिलिटी जीन दैट इज आरबी जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 13, ये क्रोमोसोम 13 पे होता है। जबकि जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है रेटिनोब्लास्टोमा जीन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज 14 बैंड ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 10, तो क्रोमोसोम 10 नहीं होगा, क्रोमोसोम 13 होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। एंडोफाइटिक ट्यूमर जो विट्रस ट्यूमर में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ आइसोलेटेड अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनेमिया in the absence of hemolysis in an otherwise healthy person is A. Crigler-Najjar syndrome type 2, B. Crigler-Najjar syndrome type 1, C. Dubin-Johnson syndrome, D. Gilbert syndrome। And the answer is Gilbert syndrome। An isolated elevation of unconjugated bilirubin, ये होता है गिलबर्ट सिंड्रोम में। In the absence of hemolysis, an isolated unconjugated hyperbilirubinemia in an otherwise healthy patient can be attributed to Gilbert syndrome। तो अगर hemolysis नहीं है और सिर्फ unconjugated hyperbilirubinemia है तो वो गिलबर्ट सिंड्रोम है। हेरिडिटरी नॉन हीमोलाइटिक हाइपरबिलिरूबिनेमिया, तो ये बेसिकली दो तरह का होता है, अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड, यानी कि जो लिवर में जो कंजुगेशन हो रहा है उसके पहले अगर प्रॉब्लम है तो दैट इज़ अनकंजुगेटेड, एंड कंजुगेशन के बाद अगर वो बाइल में आ रहा है दैट इज़, अगर ब्लड में आ रहा है दैट इज़ कंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड दो तरह का होगा, गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम, जबकि कंजुगेटेड में ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम भी फर्दर दो तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो इसमें गिलबर्ट सिंड्रोम ऑटोजोमल डोमिनेंट, डिक्रीज इन यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, डिक्रीज इन कंजुगेशन, क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है तब कंजुगेशन होता है, एंजाइम नहीं है इसका एक्टिविटी
डिक्रीज़ कर जाता है, जिसके कारण कंजुगेशन भी डिक्रीज करेगा। और इन इम्पेयर्ड हेपेटिक अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, और ये माइल्ड होता है। जबकि क्रिनल-नेजर सिंड्रोम में टाइप 1 टाइप 2 में टाइप 1 ऑटोजोमल रिसेसिव है, जबकि टाइप 2 ऑटोजोमल डोमिनेंट है। टाइप 1 में एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, जबकि टाइप 2 में एब्सेंस नहीं होता है बल्कि डिक्रीज होता है। टाइप 1 में नो कंजुगेटेड बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड, जबकि उसमें कुछ फॉर्मेशन होता है टाइप 2 में। टाइप 1 में हाई रिस्क ऑफ कनेक्टेरस, यानी कि ब्रेन तक चला जाएगा, बट टाइप 2 में कनेक्टेरस रेयर है। टाइप 1 ज़्यादा फैटल है, जबकि टाइप 2 माइल्ड टू मॉडरेट है। वहीं अगर कंजुगेटेड की बात करें तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम ऑटोजोमल रिसेसिव है। जेनेटिक डिफेक्ट इन कैनेलिक्यूलर एक्सक्रीशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंट लीवर, तो जो लीवर है उसमें ग्रीनिश ब्लैक पिगमेंटेशन रहेगा। एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड प्रोलॉन्ग बीएसपी डाई एक्सक्रीशन टेस्ट इज डायग्नोस्टिक। तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, और सबसे सिंपलर फॉर्म गिलबर्ट सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 21. In chronic hepatitis B, the serological marker which correlates with level of liver injury and risk of disease progression is A. HbCAg, B. HbEAg, C. HbSAg, D. HbV DNA. And the answer is HbV DNA. Chronic hepatitis B, the level of HbV DNA correlates with the level of liver injury and the risk of progression. तो उसके लिए HbV DNA important है। FMT. Question number 22. The dye used for the production of green tattoo is A. chromic acid, B. cobalt, C. Indian ink, D. vermilion. And the answer is chromic acid. टैटू मार्क्स क्रोमिक एसिड ग्रीन कलर का होगा, तो क्रोमिक एसिड यूज़ किया जाता है ग्रीन कलर के लिए। द डाइज यूज्ड कॉमनली इन टैटू मार्क्स, इंडियन इंक कार्बन ब्लैक कलर का होगा, सिनेबार और वर्मिलियन दैट इज़ मर्क्यूरिक सल्फाइड वो रेड कलर का होगा यानी सिंदूर, क्रोमिक एसिड ग्रीन कलर का होगा, इंडिगो कोबाल्ट प्रूशियन ब्लू और फेरिक फेरोसाइनाइड अल्ट्रामेरिन वो ब्लू कलर का होगा। Question number 23. Statement 1. Adipose hair is most commonly seen in bodies immersed in water or in a damp warm environment. Statement 2. In adipose hair, hydrogenation and hydrolysis of fats into higher fatty acids occur. These are the options. And the answer is both statement 1 and statement 2 are true. एडिपोस हेयर जिसको कि सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। एडिपोस हेयर, हेयर मीन्स वैक्स, इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूट्रिफैक्शन इन दिस द फैटी टिश्यूज ऑफ बॉडी चेंजेस इनटू अ सब्सटेंस नोन एज एडिपोस हेयर, इसलिए इस प्रोसेस को एडिपोस हेयर कहते हैं। इट इज़ सीन मोस्ट कॉमनली इन बॉडीज इमर्स्ड इन वाटर और इन डैम्प वार्म इन्वायरमेंट, and the change is due to the gradual hydrolysis and hydrogenation of pre-existing fats such as olein into higher fatty acid. तो ये higher fatty acid में convert होता है। तो जो स्टेटमेंट है एडिपोस हेयर इज मोस्ट कॉमनली सीन इन बॉडीज इमर्स्ड इन वाटर और इन अ डैम्प वार्म इन्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। इन एडिपोस हेयर हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इनटू हायर फैटी एसिड अकर, ये स्टेटमेंट भी सही है। Adipose hair is also called saponification, corpse wax, grave wax, mortuary wax. Question number 24. Match the following. लिस्ट 1 में पॉइजनिंग है, लिस्ट 2 में पोस्टमार्टम स्टेनिंग है। पॉइजनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्राइड्स, एंड पोस्टमार्टम स्टेनिंग में ब्लूइश ग्रीन, चॉकलेट, चेरी रेड, डार्क ब्राउन। These are the options. And the answer is carbon monoxide, cherry red, phosphorus, dark brown, hydrogen sulfide, bluish green, nitrites, chocolate. Color changes is poisoning. The hypostatic area have distinct color in certain cases of poisoning. यानी कि जो लोअर पोर्शन है जहाँ पर कि ब्लड एक्यूमुलेट करता है
उसमें कलर चेंज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में चेरी रेड होगा, फिर नाइट्राइट में चॉकलेट और कॉपर ब्राउन कलर का होगा, फॉस्फोरस में डार्क ब्राउन और येलो कलर का होगा, एंड हाइड्रोसल्फाइड का पॉइजन होगा तो ब्लूइश ग्रीन होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion and the other is reason। assertion है viscera should not be preserved in formaldehyde, reason है extraction of non volatile organic poisons become difficult। These are the options and the answer is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। The viscera should not be preserved in formaldehyde because extraction of poison, especially non-volatile organic compounds, becomes difficult। Surgery। Question number 26. Among the following, which organism invades intact corneal epithelium? A. Corynebacterium diphtheria, B. Pneumococcus, C. Staphylococcus, D. Streptococcus। And the answer is Corynebacterium diphtheria। Pathogens which can invade the intact corneal epithelium and produce ulceration are Corynebacterium diphtheria। So the answer is Corynebacterium diphtheria। Question number 27. Curling ulcer is A. Acute peptic ulcer which develops after cerebral trauma, B. Acute peptic ulcer which develops after major burns, C. Acute peptic ulcer which develops after use of NSAID, D. Occurs due to Helicobacter pylori infection। And the answer is acute peptic ulcer which develops after major burns। Acute peptic ulcer after burn they are called curling ulcer। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर में दो टर्म है, एक कर्लिंग अल्सर और एक कशिंग अल्सर। आफ्टर बर्न दे आर कॉल्ड कर्लिंग अल्सर एंड आफ्टर हेड इंजरी और न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस दे आर कॉल्ड कशिंग अल्सर। दोनों ही केस में एक्यूट पेप्टिक अल्सर होता है। अगर बर्न के बाद होगा एक्यूट पेप्टिक अल्सर तो उसको कर्लिंग अल्सर कहेंगे, अगर हेड इंजरी न्यूरोलॉजिकल सर्जिकल ऑपरेशन के बाद अगर अल्सर हो रहा है तो उसको कशिंग अल्सर कहेंगे। Question number 28. A 30-year-old male presented with painless swelling in the right groin region. On examination, the swelling exhibits impulse on cuffing and reducibility. The swelling doesn't come out on cuffing when the deep inguinal ring is occluded। Options are direct inguinal hernia, femoral hernia, indirect inguinal hernia, lumbar hernia। And the answer is indirect inguinal hernia। So indirect inguinal hernia में when internal ring occlusion test वैसे केस में swelling is not seen। तो indirect hernia का ये साइन है। Also impulse on cuffing present, ये भी indirect hernia का साइन है। नॉर्मल पेशेंट में एब्डोमिनल मस्कुलेचर है, फिर एपिगेस्टिक वेसल्स है, उसके बाद इंगुइनल कैनाल है एंड जो सबसे राइट मोस्ट एरिया दैट इज पेट्रोनियम, वो सबसे मीडियली होगा। दो कंडीशन है, इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया एंड डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया। इंडायरेक्ट इंगुइनल हर्निया जो है वो इंगुइनल रिंग के थ्रू इंगुइनल कैनाल के थ्रू क्रॉस करता है। तो लेटरल टू एपिगेस्टिक वेसल, जो एपिगेस्टिक वेसल है उसके लेटरली आता है, प्रोजेक्ट्स थ्रू इंगुइनल रिंग। जबकि जो डायरेक्ट इंगुइनल हर्निया होता है इट इज़ मीडियल टू एपिगेस्टिक वेसल, वो एपिगेस्टिक वेसल से मीडियल होता है एंड प्रोजेक्ट्स थ्रू एब्डोमिनल वॉल, वो इंगुइनल रिंग के थ्रू इंगुइनल कैनाल के थ्रू ना जा करके वो डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल की तरफ पुश होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिनस टेस्ट। ए पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल हियरिंग, बी पॉजिटिव इन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सी नेगेटिव इन कंडक्टिंग हियरिंग लॉस, D negative in otosclerosis, E positive in perforation of tympanic membrane। These are the options and the answer is A, B, C, D only, that is positive in case of normal hearing, positive in sensory neural hearing loss,
negative in conducting hearing loss, and negative in otosclerosis. रिंस टेस्ट, इट इज़ पॉजिटिव एंड कब देखा जाएगा, सीन इन नॉर्मल पर्सन और दोज हैविंग सेंसरी न्यूरल डिफनेस, एंड नेगेटिव इन टेस्ट जिसमें कि बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एयर कंडक्शन इज सीन इन कंडक्टिव डिफनेस. ये ऑटोस्क्लोसिस में रिन टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है. रिंस टेस्ट एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन, जब मास्टोइड प्रोसेस के पास जब उसको रखते हैं दैट इज बोन कंडक्शन. टेस्ट कैसे करेंगे, इनिशिएट वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एंड देन प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ऑन टू द पेशेंट्स मास्टोइड प्रोसेस ऑफ द टेस्टेड ईयर. Ask the patient to cover the opposite ear with their hand. Ask the patient to report when the sound can no longer be heard. Then, after the patient can no longer hear the tuning fork placed on mastoid process, move the vibrating tuning fork adjacent to the ear canal with the tines oriented perpendicular to the ear canal approximately 3 to 4 cm from ear. तो पहले patient should indicate when they can no longer hear the sound conducted through the ear. तो पहले जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो मास्टोइड प्रोसेस के पास रखते हैं, उसके बाद वो ईयर में रखते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस है वो देखते हैं. इंटरप्रिटेशन, नॉर्मल फाइंडिंग और पॉजिटिव टेस्ट एंड एबनॉर्मल फाइंडिंग और नेगेटिव टेस्ट. एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, ये नॉर्मल है, जबकि बोन कंडक्शन इज़ बेटर देन एयर कंडक्शन, ये एबनॉर्मल है. द पेशेंट शुड बी एबल टू हियर द साउंड ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क एडजेसेंट टू देयर ईयर, बट नेगेटिव टेस्ट में यानी एबनॉर्मल फाइंडिंग में द पेशेंट कैन नॉट हियर साउंड कंडक्टेड थ्रू द एयर आफ्टर द ट्यूनिंग फॉर्म इज मूव्ड फ्रॉम द मास्टोइड प्रोसेस. Persist for approximately twice as long as sound they hear over their mastoid process. यानी जब बोन का जो पोर्शन है उससे लगभग डबल टाइम तक एयर में सुनाई देता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है. दिस सजेस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस. क्वेश्चन नंबर 30. A 25-year-old cyclist was struck in a road accident and is brought to the hospital. On examination, his perineum and scrotum are swollen and bruised. There is a streak of blood at the external meatus and he is unable to pass urine. The patient most likely has femoral head fracture, femoral neck fracture, femoral shaft fracture, pelvic fracture. And the answer is pelvic fracture. Pelvic fractures उसमें ये कंप्लेन रहेगा लाइक एक्सीडेंट के बाद होगा. इंजरीज टू यूरेथ्रा इन मेल, तो ये जो एक्सटर्नल मीटर्स के पास ब्लड आएगा एंड यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होगा, ये बेसिकली पेल्विक फ्रैक्चर का कारण होगा. क्वेश्चन नंबर 31. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, बेसल सेल कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम बेसल सेल लेयर ऑफ रेटिव मेलपिगी ऑफ द स्किन. स्टेटमेंट 2, बेसल सेल कार्सिनोमा spreads rapidly through lymphatics and blood vessels. These are the options. And the answer is statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. बेसल सेल कार्सिनोमा, इसको कि रोडेंट अल्सर भी कहते हैं. इट अराइजेज फ्रॉम बेसल सेल, तो बेसल सेल से अराइज हो रहा है. मेटास्टेसिस एंड डेथ फ्रॉम दिस डिजीज इज एक्सट्रीमली रेयर. तो जो मेटास्टेसिस का फेज है कि वो लिम्फ के थ्रू या ब्लड के थ्रू होता है, ये स्टेटमेंट गलत है. मेलपिगियन लेयर, इसी को स्टेटम म्यूकोसम या फिर स्टेटम बैसिली कहते हैं. स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है. ऑब्सकाइनी. क्वेश्चन नंबर 32. द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ वेट गेन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज A. Fat deposition, B. Fetal weight, C. Placental weight, D. Uterine weight. And the answer is fat deposition. Weight gain, तो जो ग्रीन पोर्शन है रिप्रोडक्टिव वेट गेन दैट इज 6 kg, उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ फैट मेनली एंड प्रोटीन जो कि 3.5 kg होता है. तो मैक्सिमम वेट गेन जो है वो फैट के कारण होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट.
द टोटल वेट गेन इज़, तीनों ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में टोटल 11 kg वेट गेन होता है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 to 12 वीक्स तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक्स तक एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक तक। क्वेश्चन नंबर 33, कॉमनेस्ट बेनाइन ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा इज ए एडेनोमा, बी कोरियोएंजियोमा, सी हेमेटोमा, डी पेपिलोमा। एंड द आंसर इज कोरियोएंजियोमा। Placental chorioangioma, it is the most common placental tumor. Chorioangioma is also called placental hemangioma. Placenta with a 10 centimeter chorioangioma. तो इसमें ये जो chorioangioma है जो अपर लेफ्ट एरिया में है। क्वेश्चन नंबर 34, क्विकनिंग इज फेल्ट बाय अ प्राइमरी ग्रेविडा बाय अबाउट ए 18th week, B 24th week, C 28th week, D 32nd week. And the answer is 18th week. Quickening, feeling of life, denotes the perception of active fetal movement by the woman. It is usually felt about 18th week. तो 18th week में फील होता है प्राइमरी पारा में। क्विकनिंग प्राइमरी पारा में 18th week में फील होता है, जबकि मल्टी पारा में 2 वीक पहले होता है, दैट इज 16th वीक में। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और ईडीडी बाय डेट ऑफ क्विकनिंग, तो क्विकनिंग से ईडीडी भी पता करते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा में बाय एडिंग 22 वीक, जब क्विकनिंग पता चलेगा तब से, एंड मल्टी पारा में बाय एडिंग 24 वीक। तो प्राइमरी ग्रेविडा में एडिंग 22 वीक, क्योंकि प्राइमरी ग्रेविडा में 18th वीक में होता है, सो 18 + 22 दैट इज़ 40 वीक, जो कि एक एवरेज टर्म होता है। एंड मल्टी पारा में बाय एडिंग 24 वीक, तो 16 + 24 दैट इज़ 40। तो जब ईडीडी कैलकुलेट करना रहे बाय क्विकनिंग से, ऐसे तो एलएमपी से करते हैं, बट अगर क्विकनिंग के डेट से किया जाए तो प्राइमरी ग्रेविडा में 22 वीक्स ऐड करेंगे एंड मल्टी में 24 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 35, अरेंज द सीरीज ऑफ मूवमेंट इन नॉर्मल लेबर इन करेक्ट ऑर्डर। ए रेस्टिट्यूशन, बी एक्सटर्नल रोटेशन, सी इंगेजमेंट, डी क्राउनिंग, ई डिलीवरी ऑफ द हेड बाय एक्सटेंशन। ये ऑप्शंस है। सीक्वेंस में सबसे पहले इंगेजमेंट, फिर क्राउनिंग, डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो सबसे पहले इंगेजमेंट होता है, उसके बाद डिसेंट शुरू होता है जो कि पूरे प्रोसेस तक रहता है डिलीवरी तक। इंगेजमेंट के बाद डिसेंट, उसके बाद इंक्रीजिंग फ्लेक्शन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन, फिर क्राउनिंग, फिर डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, देन रेस्टिट्यूशन, देन एक्सटर्नल रोटेशन एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन। निमोनिक है एंड डायस्टोलिक फ्लो, शॉर्ट में एडीएफ। सो निमोनिक है एडीएफ, आइस, रेड। तो सबसे पहले इंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, फिर डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बाय लेटरल फ्लेक्शन। तो जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले इंगेजमेंट, फिर क्राउनिंग, फिर डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड सबसे लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन। ये पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है एंड जो आगे है दैट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल। यही मूव करता है अबाउट 90 डिग्री, वो इंटरनल रोटेशन हुआ। और यही जब फर्दर 1/8 यानी 45 डिग्री मूव करता है तो उसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद आगे फिर 1/8 दैट इज़ 45 डिग्री जब मूव करता है तो उसको एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। तो जो 90 डिग्री मूव होता है और 2/8 मूव होता है दैट इज़ इंटरनल रोटेशन, एंड जो 1/8 होता है और 45 डिग्री होता है दैट इज़ रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। और ये इंटरनल रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है।
तो सबसे पहले 90 डिग्री जो मूव हो रहा है, जो स्क्वायर पोर्शन है दैट इज़ एंटीरियर फॉन्टेनियल, और जो वी पोर्शन है डॉटेड लाइन दैट इज़ पोस्टीरियर फॉन्टेनियल। तो जो 90 डिग्री मूव हो रहा है इज़ इंटरनल रोटेशन, और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में पहले 45 डिग्री होता है दैट इज रेस्टिट्यूशन, एंड फर्दर 45 डिग्री होता है दैट इज एक्सटर्नल रोटेशन। EDF आई सेड, इसमें E मीन्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फिटल हेड क्रॉसेस द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ मैटरनल पेल्विस। D से डिसेंट यानी नीचे तरफ आना, फिटस डिसेंट्स इनटू द पेल्विस। F से फ्लेक्शन दैट इज फिटल नेक फ्लेक्सेस चिन टू चेस्ट, यानी कि जो चिन है वो चेस्ट में टच करता है दैट इज फ्लेक्शन। I से इंटरनल रोटेशन, पेल्विक फ्लोर हैज़ अ गटर शेप विथ अ फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप एनकरिंग द फिटल हेड टू रोटेट ऑफ 90 डिग्री, इसलिए जो हेड है वो जब नीचे तरफ आता है तो 90 डिग्री मूव करता है दैट इज इंटरनल रोटेशन। उसके बाद C से क्राउनिंग दैट इज हेड इज विजिबल एट द वल्वा, तो उसको क्राउनिंग बोलते हैं। E से एक्सटेंशन, हेड एक्सटेंड्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ हेड, तो जो हेड का बर्थ होता है वो बाई एक्सटेंशन होता है। R स्टैंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन, तो जो इंटरनल रोटेशन था उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा और 45 डिग्री का मूवमेंट होता है। विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ नेक सस्टेन्ड ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन 45 डिग्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन। अगेन E stands for external rotation, that is further rotation in the same direction of restitution that is 45 degrees, and D stands for delivery of shoulder and trunk by lateral flexion. Question number 36. Powder burns are pathognomic of which of the following condition? A. Chronic PID that is pelvic inflammatory disease. B. Pelvic endometriosis. C. TB of genital tract. D. Uterine fibroid. And the answer is pelvic endometriosis. Pelvic endometriosis, typically they are small black dots, then that why they are called powder burns, and ये pelvic endometriosis में मिलता है. The appearance of pelvic endometriosis, note the black dots and puckered peritoneum, sites of involvement are ovaries, uterosacral ligament and pelvic peritoneum. पकड़ यानी फोल्डेड, जैसे कोई एक कपड़ा है उसके बीच से कोई जब धागा खींचा जाता है तो जिस तरह का वो बीच में इसमें फोल्डेड मार्जिन आ जाता है उसको पकड़ बोलते हैं, तो वो पकड़ अपीयरेंस होगा एंड ब्लैक डॉट्स होगा. Endometriosis, presence of functioning endometrium in the sites other than uterine mucosa is called endometriosis. यानी कि जैसे एंडोमेट्रियम का लेयर है वैसा लेयर कहीं और भी अगर बनता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर उस जगह से भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. पाउडर बर्न्स आर ऑल्सो कॉल्ड गन शॉट और मैचस्टिक स्पॉट्स. Question number 37. High risk factors for placenta previa are A. Primary gravida, B. Smoking, C. Maternal age more than 35 years, D. Prior curettage, E. African women. These are the options, and the answer is smoking, maternal age more than 35 years and prior curettage. The high risk factors for placenta previa are multiparity, इंक्रीज मैटरनल एज जो कि 35 ईयर्स से ऊपर हो दैट इज एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, स्मोकिंग एंड प्रायर क्यूरेटेज, ये सारा कंडीशन है. प्लासेंटा प्रीविया, व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं. ओवर एंड एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस, तो इंटरनल ओस के आसपास के एरिया को वो कवर कर सकता है, एंड लो एरिया में लोअर सेगमेंट में होता है. Placenta previa, previa means in front, that denotes position of the placenta in relation to the presenting part, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट जो डिलीवर होगा उसके भी पहले जब प्लासेंटा आए दैट इज प्लासेंटा प्रीविया. टाइप्स और डिग्रीज, 4 टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लासेंटा टू द लोअर सेगमेंट, कि वो कितना ज़्यादा सीवियर है. टाइप 1 और लो लाइन, टाइप 2 मार्जिनल यानी कि ऑलमोस्ट मार्जिन तक रहेगा. टाइप 3 इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल, जो कि सेंटर को कवर या तो कम्प्लीटली कवर करेगा
बट जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर उसमें डायलेटेशन होगा तो उसमें वो चेंज होगा, और टाइप 4 जिसमें कि वो पूरे एरिया को कवर कर देगा और मूव नहीं करेगा। टाइप 1 और लो लाइन, मेजर पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट एंड द ओनली द लोअर मार्जिन इनक्रॉसेज ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द ओस, यानी जो इंटरनल ओस है उसको कवर नहीं करता है, सारा पोर्शन ऊपर आता है, थोड़ा पोर्शन नीचे तरफ आता है, दैट इज टाइप 1। टाइप 2, द प्लासेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डजेंट कवर इट, तो सिर्फ मार्जिन तक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मार्जिनल। टाइप 3, incomplete or partial central, the placenta covers the internal os partially, covers the internal os when closed but doesn't entirely do so when fully dilated, जब वो fully dilated है तब वो completely covered नहीं होता है। जबकि टाइप 4 जिसको कि सेंट्रल और टोटल कहते हैं, द प्लासेंटा completely covers the internal os even after it is fully dilated, तो पूरी तरह से अगर डायलेटेड रहेगा तब भी प्लासेंटा फुल्ली कवर्ड रहता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल और टोटल। तो टाइप 1 जो कि बहुत किनारे साइड में है वो मार्जिन तक भी नहीं है, टाइप 2 जो ऑलमोस्ट मार्जिन तक है, टाइप 3 जो काफ़ी हद तक कवर कर रहा है, एंड टाइप 4 दैट इज सेंट्रल, वो पूरे रीजन को कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है। लिस्ट 1, जर्म सेल ट्यूमर, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड सेल ट्यूमर, सेकेंडरी ओवेरियन ट्यूमर। लिस्ट 2 में कुकेनबर्ग ट्यूमर, टेटोमा ऑफ ओवरी, सेरस सिस्ट एडेनोमा ऑफ ओवरी, एरेनोब्लास्टोमा। These are the options. And the answer is germ cell tumor, steatoma of ovary, surface epithelial tumor, serous cyst adenoma of ovary, sex cord cell tumor, areноblastoma, secondary ovarian tumor, Krukenberg tumor. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन ट्यूमर, इसमें सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर, उसका एक टाइप है एरेनोब्लास्टोमा, दैट इज सर्टोली लिडिक सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, इसका फर्दर टाइप है टेटोमा। टेटोमा, a tumor made up of several different types of tissue such as hair, muscle, teeth or bone. A type of germ cell tumor, a tumor that begins in the cells that give rise to eggs. तो वो germ cell tumor है, तो उससे जब एराइज होगा और जो टिश्यू होगा वो दूसरे फॉर्म में रहेगा, उसमें हेयर हो सकता है, मसल, टीथ या बोन का फॉर्मेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टेटोमा। जैसे में ओवेरियन टेटोमा विथ हेयर इनसाइड, इसमें हेयर फॉलिकल एक है, तो जो हेयर प्रेजेंट है दैट इज अ टेटोमा, ओवेरियन टेटोमा। सेरस सिस्ट एडेनोमा, सेरस सिस्ट एराइजेस फ्रॉम टोटिपेटेंट सरफेस एपिथेलियम ऑफ ओवरी। ये सेरस सिस्ट है, बायलेटरल पैपिलरी सेरस सिस्ट एडेनोमाटा एंड हेमीसेक्शन शोइंग इंटरनल पैपिलरी एक्सक्रेशंस, तो ये पैपिलरी स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, ब्रांचिंग आर्किटेक्चर ऑफ पैपिलरी ग्रोथ। सर्टोली लिडिक सेल ट्यूमर, इसी को बोलेंगे एरेनोब्लास्टोमा और एंडोब्लास्टोमा, कहीं कहीं पे ये दोनों टर्म साथ में यूज होता है, पहले अलग अलग यूज होता है, अब इकट्ठे एक वर्ड है, सर्टोली लिडिक सेल ट्यूमर। एरेनोब्लास्टोमा, द एंड्रोजेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर, इसमें एंड्रोजन बढ़ जाता है, इसमें 2 फेज होता है, पहला डीफेमिनाइजेशन एंड उसके बाद जब वो केस एडवांस होता है इट कॉजेज मैस्कुलाइजेशन। डीफेमिनाइजेशन यानी जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो घटते जाएगा, एंड जब एंड्रोजन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें मैस्कुलाइजेशन यानी कि जो मेल पैटर्न है वो आने लगेगा। सो डीफेमिनाइजेशन, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट एंड यूट्रस एंड अमेनोरिया। मैस्कुलाइजेशन, मेल टाइप ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ब्रेस्ट एट्रोफी, हिर्सुटिज्म, बाल्डनेस, क्लिटोरल एनलार्जमेंट, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। So Hylar cell, that is sex cord remnants, differentiate and proliferate as androgen secreting tumor identical to Sertoli Leydig cell of testis। तो उसके जैसा होता है इसलिए एंड्रोजन का फॉर्मेशन करने लगता है, एंड्रोजन का सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज करता है, जिससे कारण कि फेमिनिन कैरेक्टर घटता है एंड मैस्कुलिन कैरेक्टर्स बढ़ता है। तो मेल पैटर्न हेयर पैटर्न होगा, एक्ने, हिर्सुटिज्म यानी कि फेशियल हेयर आएगा, चेस्ट पे हेयर रहेगा, ब्रेस्ट एट्रोफी, क्लिटोरोमेगेली यानी क्लिटोरिस का साइज इंक्रीज करेगा,
क्विकन बर्ड ट्यूमर, ये सेकेंडरी ट्यूमर है, पहले GIT में होता है एंड बाद में फिर वो ओवरी में आता है, उसके बाद फिर ओवेरियन ट्यूमर कॉज करता है। इट इज़ ए मेटास्टैटिक ट्यूमर फ्रॉम GI ट्रैक्ट। तो GI का कंप्लेन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का। प्राइमरी फोकस कार्सिनोमा ऑफ स्टोमक, तो स्टमक में पहले कार्सिनोमा होता है, उसके बाद वो ओवरी में आता है। बायलेटरल क्विकन बर्ड ट्यूमर ऑफ द ओवरीज, ये ओवरी को अफेक्ट करता है, तो ये एक सेकेंडरी टाइप ऑफ ट्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 39, A 28 years old lady presents with secondary trimester miscarriage. Commonest cause of the same may be A. Autosomal trisomy, B. Biconjugate uterus, C. Luteal phase defect, D. Monosomy X. And the answer is biconjugate uterus. तो कॉमन कॉजेज ऑफ मिसकैरेज में सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाइकॉन्जुगेट यूट्रस है, तो इसलिए आंसर होगा बाइकॉन्जुगेट यूट्रस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाए तो जेनेटिक फैक्टर जो कि 50% केसेस में होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, फिर इम्यूनोग्लोबिन डिसऑर्डर ऑफ इन्फेक्शन और कुछ अनएक्सप्लेन्ड है दैट इज इडियोपैथिक। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट जिसमें कि बाइकॉन्जुगेट यूट्रस है, सेप्टेड यूट्रस है, यूटेराइन स्नेकी, यूटेराइन फाइब्रॉइड, मैटरनल मेडिकल इलनेस और अनएक्सप्लेन। तो मेजॉरिटी जो होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का वो फीमेल के कारण होता है कि जो फीमेल कंडीशन, जो फीमेल यूट्रस है वो फीटस को सस्टेन नहीं कर पाता है, जैसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस में कि सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाता है, दैट्स वाई इट कॉजेज मिसकैरेज। क्वेश्चन नंबर 40, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1, triple test includes maternal serum alpha-fetoprotein, HCG and unconjugated estriol. Statement 2, it is done between 30 to 32 weeks of pregnancy. Statement 1 is correct but statement 2 is false. Triple test, it is combined biochemical test which include MSAFP, that is maternal serum alpha-fetoprotein, HCG human gonadotropin and UE3 that is estriol, unconjugated estriol that is E3 estrogen 3, और ये परफॉर्म किया जाता है 15 to 22 वीक्स पे। सो जो स्टेटमेंट है ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड्स मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन, HCG एंड अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल, ये स्टेटमेंट सही है, बट इट इज़ डन ड्यूरिंग 30 to 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये स्टेटमेंट गलत है, वो 15 to 22 वीक्स में होता है। दो टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट एंड क्वाड्रपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट में MSAFP यानी मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन होता है, HCG होता है एंड अनकंजुगेटेड एस्ट्रियोल होता है, जबकि क्वाड्रपल टेस्ट में एक और इंक्लूड होता है दैट इज डाइमेरिक इनहिबिन A। सो टोटल 4 बायोकेमिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द पैरामीटर्स ऑफ एब्गर स्कोरिंग आर A हार्ट रेट, B कलर, C टेम्परेचर, D मसल टोन, E रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। These are the options and the answer is heart rate, color, muscle tone, reflex irritability, टेम्परेचर नहीं होता है। एब्गर स्कोरिंग साइंस में रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी एंड कलर। स्कोर में 0, 1, 2, रेस्पिरेटरी में अगर एब्सेंट है तो 0, स्लो और इरेगुलर है तो 1 और गुड क्राइंग है तो 2। हार्ट रेट एब्सेंट है तो 0 और 100 से कम बीट्स पर मिनट है तो 1 और 100 से ज़्यादा है तो 2। मसल टोन में फ्लैसिड है तो 0, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ 1, एक्टिव मूवमेंट बॉडी मूवमेंट 2। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0, ग्रीमेज सिर्फ फेशियल था एक्सप्रेशन होगा दैट इज़ 1 एंड कफ और स्नीज दैट इज़ 2। कलर में ब्लू और पेल है तो 0, बॉडी पिंक एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू 1, कंप्लीट पिंक है तो 2। टोटल स्कोर 10 होता है। माइल्ड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट इज़ 8 to 10, माइल्ड कुछ प्रॉब्लम है तो 5 to 7, मॉडरेट 3 to 4 और सीवियर कंडीशन दैट इज़ 0 to 2। Apgar rating, the evolution of the cardiopulmonary status in the newborn has been assessed
बाई एबगर रेटिंग एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। अ निमोनिक फॉर लर्निंग पर्पसेस इंक्लूड्स एबगर, उसके नाम में ही है। ए से अपीयरेंस दैट इज स्किन कलर, पी से पल्स दैट इज हार्ट रेट, जी से ग्रीमेस दैट इज रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ए से एक्टिविटी दैट इज मसल टोन एंड आर से रेस्पिरेशन। अपीयरेंस, अगर पूरा बॉडी ब्लू है तो 0, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ ब्लू है तो 1, और कोई ब्लू कलरेशन नहीं है, पिंकिश कलर है तो स्कोर 2। पल्स में कोई पल्स नहीं है तो 0, 100 से कम है तो 1, 100 से ज़्यादा है तो 2। ग्रीमेस, नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस 0, ग्रीमेस ऑफ फीबल क्राई व्हेन स्टिमुलेटेड 1, स्नीजिंग, कफ और पुलिंग अवे व्हेन स्टिमुलेटेड 2। नो मूवमेंट 0, सम मूवमेंट 1, एक्टिव मूवमेंट 2, तो ये एक्टिविटी के लिए है। रेस्पिरेशन, नो ब्रीदिंग 0, वीक स्लो और इरेगुलर ब्रीदिंग 1, स्ट्रॉन्ग क्राई 2। Question number 42. In a lady suspected to be suffering from genital TB, the best time to do diagnostic uterine curettage is 14 to 16 day of menstrual cycle, 21 to 23 day of menstrual cycle, day 24 of menstrual cycle, day 8 to 10 of menstrual cycle. And the answer is day 21 to 23 of menstrual cycle. Diagnostic uterine curettage, it is to be done during the week preceding menstruation. यानी मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होने वाला है उसके 1 वीक पहले। सो 28 माइनस 7 दैट इज़ 21, उस रेंज में 20। द ट्यूबरकल्स आर लाइकली टू कम ऑन द सर्फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस समय ट्यूबरकल्स होते हैं सर्फेस में, तो जब क्यूरेटेज करेंगे तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकल्स आर सीन ओवर द यूट्रस एंड द ट्यूब। Note also the peritoneum and intestine which are also studied with miliary tubercles। तो ये tubercles है और क्यूरेटेज में इसी का स्टडी करते हैं जब ये रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 कॉलमन सिंड्रोम, मेयर रॉकिटेंस्की कस्लर हॉजर सिंड्रोम, शीहान सिंड्रोम, एशमन सिंड्रोम। लिस्ट 2 पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन बाय इस्चीमिया, low or absent gonadotropic releasing hormone, uterine synecdoche, absence of uterus. These are the options, and the answer is Kallmann syndrome is low or absent gonadotropic releasing hormone, Mayer-Rokitansky Kessler-Hauser syndrome, absence of uterus, Sheehan syndrome, pituitary destruction by ischemia, Asherman syndrome by uterine synecdoche. Kallmann syndrome, immunologically gonadotropic releasing neurons develop in the ectodermal olfactory placode before they migrate finally to the hypothalamus. But Kallmann syndrome में gonadotropic releasing hormone neurons are absent. इसी कारण जो है gonadotropic releasing hormone बनता नहीं है। कंप्लीट एजेनेसिस होता है मेयर रॉकिटेंस्की कस्लर हॉजर सिंड्रोम में, यूट्रस जो है वो एब्सेंट होगा। शीहान सिंड्रोम, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस होता है। ये बेसिकली पोस्टपार्टम हेमरेज में होगा। और भी फैक्टर्स है लाइक पोस्टपार्टम हेमरेज में एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन प्रेगनेंसी में सारा ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है, पिट्यूटरी का ही बढ़ता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो एनलार्जमेंट होता है। बट प्रॉपरली उसका अगर डिमांड पूरा नहीं हो ब्लड सप्लाई का, उससे कारण नेक्रोसिस हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में नेक्रोसिस हो सकता है, या फिर DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन फॉलोइंग डिलीवरी, ट्रॉमेटिक इंजरी टू वेसल्स, एक्सेसिव हेमरेज, ये सारे केसेस में होगा। ये सारे फैक्टर्स के कारण हाइपोटेंसिव शॉक, जो BP है वो लो होगा। इट लीड्स टू पिट्यूटरी इस्चीमिया, वहाँ पे इस्चीमिया होगा। फर्दर पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस होगा, दैट लीड्स टू शीहान सिंड्रोम। 2 टर्म होता है, एक शीहान सिंड्रोम होता है, एक सिमन सिंड्रोम होता है। जब फीमेल में होगा तो उसको शीहान सिंड्रोम बोलेंगे। सेम कंप्लेन अगर मेल में हो रहा है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं होता है, बट वो सडन हेमरेज के कारण हो सकता है, दैट लीड्स टू सिमन सिंड्रोम।
तो पोस्टमार्टम हेमरेज, उसके कारण रैपिड ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, बीपी बहुत लो हो जाता है, दैट लीड्स टू थ्रोम्बोसिस, नेकोसिस एंड स्कार फॉर्मेशन। उससे से नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपरप्लास्टिक पिट्यूटरी होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उससे कारण भी ये कंप्लेन हो सकता है। पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन होगा तो जो फर्दर हार्मोन है वो काम नहीं करेगा, जिससे कारण की बॉडी इफेक्ट होगा, लाइक प्रोलैक्टिन डिफिशियंसी के कारण फेलियर ऑफ लैक्टेशन, एसीटीएस के कमी के कारण एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टिकल इंसफिशियंसी यानी कि एडिसन्स डिजीज होगा, एक्यूट इनिशियल शॉक, लॉस ऑफ प्यूबिक एंड बॉडी हेयर, एस्थेनिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एफएसएस एंड एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, उसके डिफिशियंसी के कारण गोनाडल इंसफिशियंसी दैट विल लीड टू एमेनोरिया, टीएसएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके डिफिशियंसी के कारण हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, फिर मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के डिफिशियंसी के कारण पैलर होगा, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ अनीमिया। यूट्राइन स्नेकी, इसी को एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। दिस फॉर्मेशन ऑफ एडहेशन following post-abortal and puerperal curetage and also following diagnostic curetage in dysfunctional uterine bleeding, यानी कि जब यूट्राइन क्यूरेटेज होता है वहाँ पर से स्क्रैप करके कंटेंट हटाया जाता है, उससे कारण हो सकता है कि यूट्रस का एक लेयर एंटीरियर और पोस्टीरियर या फिर कोई भी जो अपोजिट साइड होगा वो आपस में चिपक सकता है, जिसको कि सिनेकी कहते हैं, दैट इज यूट्राइन सिनेकी। उस कंडीशन को एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। एशरमैन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज यूट्राइन स्नेकी इंट्रायूट्राइन एडहेशन, क्योंकि जो लेयर है वो आपस में चिपक जाता है। इट इज़ दी शोइंग फिलिंग डिफेक्ट एट द एडहेशन साइड, तो पहले एक डाई इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जब स्टेरोसल्पिंगोग्राम जब देखेंगे तो बीच में जो एरिया है यूट्रस का वो ब्लैकिश दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर डाई नहीं पहुँचा है, क्योंकि वो वॉल आपस में चिपका हुआ है। PSM क्वेश्चन नंबर 44, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion, verification of the diagnosis is the first step in an epidemic investigation. Reason, the epidemiological investigation should be delayed till the laboratory results are available. These are the options and the answer is assertion is correct but reason is not correct. Verification of diagnosis. Verification of diagnosis is the first step in an epidemic investigation. तो ये स्टेटमेंट सही है। Laboratory investigation wherever applicable are most useful to confirm the diagnosis, but the epidemiological investigation should not be delayed until the laboratory results are available. तो उसको डिले नहीं करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, बट जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स PTKs was labeled under NRHM by the name of छाया, निक्षय, निर्भय, निश्चय, and the answer is निश्चय. Pregnancy testing kits, निश्चय home based pregnancy test kits was launched under NRHM in 2008 across the country. तो ये टेस्ट किट है जिसका नाम निश्चय है। क्वेश्चन नंबर 46, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सैंडफ्लाई, फ्लियाज, हार्टिक, सॉफ्टिक, लिस्ट 2 में बिबोनिक प्लेग, रिलैप्सिंग फीवर, ओरिएंटल सो, रॉकेट माउंटेन स्पॉटेड फीवर। These are the options and the answer is sandfly, oriental sore, fleas, bubonic plague, hard tick, rocky mountain spotted fever, soft tick, relapsing fever. तो सैंड फ्लाई के कारण ओरिएंटल सोर होता है, दैट फ्ली के कारण बिबोनिक प्लेग होता है, हार्ट टिक के कारण टिक टाइफस, इसी को रॉकी माउंटेन फीवर भी कहते हैं। तो इंडिया में हार्ट टिक के कारण होता है, बट इंडिया के बाहर ये सॉफ्ट टिक के कारण होता है। फिर सॉफ्ट टिक, रिलैप्सिंग फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इसी को टिक टाइफस और ब्लैक मीजल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो डॉटेड स्पॉट होता है ब्लीडिंग के कारण, इसी कारण इसको ब्लैक मीजल्स कहते हैं। हार्ट टिक एंड सॉफ्ट टिक। Particular rash on the arm caused by Rocky Mountain spotted fever. Question number 47.
Statement 1, in standard normal curve, the total area of curve is 100. Statement 2, in standard normal curve, the mean, median and mode all coincide. These are the options. And the answer is statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Standard normal curve. The total area of the curve is 1. The mean, median and mode all coincide. In a standard normal curve, the total area of curve is 100. ये स्टेटमेंट गलत है. 100 नहीं होता है बल्कि 1 होता है. इन स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व द मीन, मीडियन एंड मोड ऑल कोइंसाइड. ये लाइन सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एप्स्टेइन-बार वायरस इज एसोसिएटेड विथ बर्किट्स लिम्फोमा. एप्स्टेइन-बार वायरस इज एसोसिएटेड विथ नासोफैरिंजियल कार्सिनोमा. Mongols are more likely to develop leukemia than normal children. Thermography is more sensitive technique of breast cancer screening than mammography. These are the options. And the answer is Epstein-Barr virus is associated with Burkitt lymphoma. Epstein-Barr virus is associated with nasopharyngeal carcinoma. Mongols are more likely to develop leukemia than normal children. ये तीनों स्टेटमेंट सही है. The Epstein-Barr virus (EBV) is associated with two human malignancies, Burkitt lymphoma and nasopharyngeal carcinoma. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि Burkitt lymphoma और nasopharyngeal carcinoma दोनों होता है Epstein-Barr वायरस के कारण. Mongols are more likely to develop cancer, leukemia than normal children. So Mongols are more likely to develop leukemia than normal children. ये लाइन सही है. Screening for breast cancer तो पैल्पेशन होता है. एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, पैल्पेशन होता है बाय फिजिशियन, थर्मोग्राफी एंड मैमोग्राफी. Thermography has the advantage that the patient is not exposed to radiation. Unfortunately, it is not a sensitive tool. Mammography is most sensitive and specific in detecting small tumors that are sometimes missed on palpation. तो जो palpation जब मिस हो जाए वो मैमोग्राफी में पता चल जाता है. तो थर्मोग्राफी इज मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग दैन मैमोग्राफी. ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि जो मैमोग्राफी है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक होता है. क्वेश्चन नंबर 49. विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज लीस्ट सेंसिटिव टू हीट? हेपेटाइटिस बी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा और पोलियो वैक्सीन. एंड द आंसर इज हेपेटाइटिस बी. तो सबसे ऊपर में मोस्ट सेंसिटिव टू हीट और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लीस्ट सेंसिटिव टू हीट. तो ओपीवी, इन्फ्लुएंजा एंड आईपीवी ये तीनों जो है वो मोस्ट सेंसिटिव टू हीट है. बट जब हेपेटाइटिस बी तक आते हैं दैट इज़ लेस सेंसिटिव टू हीट. ये किल्ड वायरस होता है, वैक्सीन होता है हेपेटाइटिस बी का. तो ये हीट से सबसे कम सेंसिटिव है. क्वेश्चन नंबर 50. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज एयरबॉर्न, ब्लडबॉर्न, ड्रॉपलेट, फीकल ओरल रूट. And the answer is fecal oral route. Mode of transmission. Typhoid fever is transmitted via the fecal oral route और urine oral route. यानी कि या तो फीसेस के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू. अगर उसको इंजेक्शन हो तो टाइफाइड होता है. डायनेमिक्स ऑफ टाइफाइड फीवर ट्रांसमिशन. सो फीसेस एंड यूरिन फ्रॉम केसेस और कैरियर्स. यानी कि जो प्रेजेंट केसेस दैट इज केसेस और डिजीज़ होने के बाद भी जब स्टूल में टाइफाइड का पॉजिटिव आते जाए दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, वो अगर मिले उसको कैरियर बोलते हैं. तो दोनों ही केस में जो फिशेज़ है या फिर जो यूरिन है वो वाटर में, सॉइल में या फिर फ्लाइज के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू जब फूड पे जाता है और उसके बाद फिर इंजेक्शन के थ्रू, माउथ के थ्रू जब बॉडी में जाता है तो उसके बाद टाइफाइड होता है. क्वेश्चन नंबर 51. मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2. लिस्ट 1 नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12. लिस्ट 2 बेरी, पर्नीशियस एनीमिया, पेलेग्रा, स्कर्वी. These are the options and the answer is niacin, pellagra, thiamine, beriberi, ascorbic acid, scurvy, vitamin B12, pernicious anemia. नियासिन से कारण की पेलेग्रा होता है. कैसल कॉलर स्किन रैश अराउंड द नेक इन पेलेग्रा. तो पेलेग्रा में जो सन एक्सपोज एरिया है वो गर्दन के पास कैसल कॉलर स्किन रैश होता है. ये सिग्निफिकेंट है. 3 Ds in pellagra: डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस.
थायमिन, थायमिन की कमी से बेरी होता है, दैट इज़ B1। बेरी बेसिकली 4 तरह का होगा, ड्राई बेरी, वेट बेरी, इन्फेंटाइल बेरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेरी। नर्व इन्वॉल्वमेंट और पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा ड्राई बेरी में। वेट बेरी में हार्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको कार्डिक बेरी भी कहते हैं। इन्फेंटाइल बेरी में अफेक्ट्स द बेबीज ऑफ मेल नरिश्ड मदर एंड GIT बेरी में अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड, उसके कारण स्कर्वी होता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी से कारण पर्निशियस एनीमिया होगा, दैट इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 इज नॉट फाउंड इन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। PM क्वेश्चन नंबर 52, a 40-year-old lady presented with colicky abdominal pain in the right upper quadrant of abdomen, dating backwards to right shoulder blade. She gives history of food intolerance to fat and flatulence. Most probable diagnosis is biliary colic, liver abscess, pancreatitis, right lower lobe pneumonia. And the answer is biliary colic. So biliary colic यानी कि गॉलस्टोन का कारण होगा। biliary colic में a severe steady ache of fullness in the epigastrium or right upper quadrant RUQ of the abdomen with frequent radiation to the interscapular area, right scapula और shoulder. इसमें episodes of biliary pain होगा, dyspepsia होगा, flatulence होगा, especially following a fatty meal. ये गॉल ब्लैडर का रीजन है जो ग्रीन कलर का शेडेड एरिया है। तो जो गॉल ब्लैडर का रीजन है दैट इज़ राइट क्वाड्रेंट, उसमें तो होगा ही राइट अपर क्वाड्रेंट। उसके बाद जो शोल्डर का रीजन है वहाँ पर भी पेन होता है राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 53, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स assertion diarrhea is a feature of 30% of patients with medullary carcinoma of thyroid. In medullary carcinoma of thyroid, the tumor cells produce 5-hydroxytryptamine or prostaglandin. These are the options. And the answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Medullary carcinoma, the tumor arises from parafollicular C cell of the thyroid. In addition to calcitonin, the tumor may secrete 5-hydroxytryptamine, that is 5-HT, और इसमें it is associated with severe watery diarrhea. मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा में उसके नाम में ही है कि क्या क्या सिम्टम होता है। तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मेडुलरी ना लिख करके मेन्युलरी है। मेडुलरी कार्सिनोमा में इट इज एसोसिएटेड विथ मेन टाइप 2 यानी कि मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म जो होगा, यानी मेन 2 इसमें प्रेजेंट होगा, 2A एंड 2B। ट्यूमर इज सराउंडेड बाई A दैट इज एमोलॉइड, तो एमोलॉइड का प्रेजेंस होगा एमोलॉइड प्रोटीन का। प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन, क्योंकि पैराफॉलिकुलर सेल या फिर C सेल जिसको बोलते हैं, तो कैल्सिटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड ट्यूमर ऑफ C सेल यानी कि पैराफॉलिकुलर सेल, उसको C सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, a 60-year-old male with a history of myocardial infarction presented with sudden onset pain in the right leg. On examination, the leg is cold to touch, peripheral leg pulsations are absent, and he can't raise his legs. The most probable diagnosis is arterial occlusion, deep vein thrombosis, sciatica, varicose vein. And the answer is arterial occlusion. इसी को acute limb ischemia भी कहते हैं। Acute limb ischemia occurs when arterial occlusion result in the sudden cessation of blood flow to the extremities. तो अचानक से जो ब्लड फ्लो एक्सट्रीमिटी में वो बंद हो जाता है। द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ आर्टेरियल एम्बोलाई आर द हार्ट, aorta and large arteries. Cardiac disorder that cause thromboembolism include atrial fibrillation, both chronic paroxysmal, acute myocardial infarction. तो हिस्ट्री में है कि MI के बाद ऐसा हो रहा है, तो acute myocardial infarction इसका हिस्ट्री में रहेगा, जिससे कारण कि पल्सेशन नहीं होगा। सीवियर पेन होगा, कोल्डनेस होगा,
फिजिकल फाइंडिंग इंक्लूड लॉस ऑफ पल्सेस डिस्टल टू ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन के बाद का जो एरिया है उसमें पल्स नहीं पता चलेगा। साइनोसिस ऑफ राइट फुट डिस्टल टू एन ऑक्लूजन कॉज्ड बाय एक्यूट आर्terial थ्रोम्बोसिस ऑफ द राइट लेग, तो दोनों पैर का कलर में डिफरेंस है, जो राइट लेग है वो ब्लूइश है ऑक्लूजन के कारण। एंजियोग्राफ बिफोर एंड आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्चीमिया, तो एंजियोग्राफ के पहले का जो फेज़ है ट्रीटमेंट के पहले का, तो उसमें एक सर्टेन जगह है वहाँ पर ऑक्लूजन से कारण आगे ब्लड नहीं जा रहा है। ये जब ट्रीटमेंट हुआ बाय थ्रोम्बोलाइटिक, तो जो थ्रोम्बस से वो टूटा, जिसके कारण फर्दर फिर ब्लड आगे गया। तो आफ्टर ट्रीटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 55, Wilson's disease can be described as autosomal dominant, autosomal recessive, trisomy of 18th chromosome, X-linked, and the answer is autosomal recessive. विल्सन डिजीज, इसको हेपेटोलेंटिकुलर डिजीनेशन भी कहते हैं, इज एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। इसमें एक रिंग मिलता है, दैट इज केफ रिंग, कैसर फ्लिशर रिंग। डार्क रिंग अपीयर टू एनसर्कल द कॉर्निया ऑफ आई ड्यू टू कॉपर डिपोजिशन इन द कॉर्निया, ऑकर्स इन विल्सन्स डिजीज, नेम्ड आफ्टर जर्मन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बर्नहार्ड कैसर एंड ब्रूनो फ्लिशर। तो जो पेरिफेरी है वहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेट है, दैट इज केफ रिंग। क्वेश्चन नंबर 56, a 12-lead electrocardiogram showed normal atrioventricular ratio and abnormally long PI interval. The most likely diagnosis is first degree AV block, second degree AV block type 1, second degree AV block type 2, third degree AV block, and the answer is first degree AV block. AV block यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, तो ये फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक में होता है कि PI इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड, PI इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा मोर देन 0.2 सेकेंड। हर्ट ब्लॉक बेसिकली दो तरह का होगा, साइनो एट्रियल ब्लॉक एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। एट्रियोवेंट्रिकुलर फिर फर्दर तीन तरह का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकेंड डिग्री भी फर्दर दो तरह का होता है, मोबिज टाइप 1 जो कि ऑप्शन में था, टाइप 1 टाइप 2, जिसको कि वेंटबक ब्लॉक भी कहते हैं, एंड सेकेंड है मोबिज टाइप 2 जिसको कि हे ब्लॉक भी कहते हैं। नॉर्मल साइनस रिदम, जो फर्स्ट फिगर है वो नॉर्मल है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसमें PI इंटरवल इंक्रीज रहेगा, ऑल P वेव्स आर कंडक्ट, सारा P वेव बनेगा, बस जो PI इंटरवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 यानी कि मोबिज टाइप 1, प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PI इंटरवल अंटिल QRS ड्रॉप, यानी कि PI इंटरवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जब तक कि QRS एब्सेंट ना हो जाए। फिर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2, इसमें कांस्टेंट PI इंटरवल होता है, बट QRS जो है वो बीच बीच में गायब रहेगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ AV कंडक्शन, तो वो अलग होता है, नॉर्मल से काफ़ी डिफरेंट रहेगा, और AV का अलग बनेगा एंड साइनो एट्रियल का अलग पल्सेशन कंडक्शन होगा। हेल्दी ECG, जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो P वेव है, और जो येलो शेडेड एरिया है वो PR इंटरवल है। तो नॉर्मल में सारा कांस्टेंट है। मोबिज टाइप 1 PI इंटरवल ग्रेजुअली इलोंगेट, तो जो येलो रीजन है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा अंटिल अ P वेव इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। तो जो येलो कलर का जो रीजन है, शेडेड रीजन है मोबिज टाइप 1 में, वो धीरे धीरे पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, उसमें PI इंटरवल धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है और अल्टीमेटली QRS बनेगा ही नहीं। जबकि मोबिज टाइप 2 में PI इंटरवल आर कंसिस्टेंट, PI इंटरवल जैसा है सेम रहेगा, बट सम P वेव्स डोंट कंडक्ट, बट कुछ P वेव जो होता है फिर फर्दर जो QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा वो नहीं बनता है। तो जो येलो शेडेड रीजन है PI इंटरवल वो सारा कांस्टेंट है, बट बीच में QRS कॉम्प्लेक्स गायब है, दैट इज मोबिज टाइप 2। मोबिज टाइप 1, मोबिज टाइप 2। मोबिज टाइप 1 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंकेबक ब्लॉक, जबकि टाइप 2 को हे ब्लॉक बोलते हैं। प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ PI इंटरवल अंटिल अ P वेव फेल्स टू कंडक्ट, तो धीरे धीरे PI इंटरवल बढ़ते जाता है, जिसके बाद कि एक बार QRS गायब हो जाता है, यानी कि P फर्दर कंडक्ट नहीं करता है। जबकि मोबिज टाइप 2 में
कांस्टेंट पीआई इंटरवल होगा। टाइप 1 में पीआई इंटरवल इज लॉन्गेस्ट इमीडिएटली बिफोर द ड्रॉप्ड बीट एंड शॉर्टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ड्रॉप्ड बीट, यानी कि जो बीट एब्सेंट हो रहा है तो धीरे धीरे इंटरवल बढ़ रहा है, तो स्टार्ट जैसे ही बीट ड्रॉप हुआ उसके बाद सबसे छोटा इंटरवल होगा, बट बीट ड्रॉप होने के जस्ट पहले का जो रीजन होगा वो सबसे लंबा होगा, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते 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 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। जबकि टाइप 2 में विथ इंटरमीडिएट नॉन कनेक्टेड पीआर वेव, वो कांस्टेंट रहता है, बस बीच में जो पी वेव है वो आगे कंडक्ट नहीं करता, जिससे कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। टाइप 1 पैटर्न टेंड्स टू रिपीट इन पी रेशियो क्यूआरएस ग्रुप्स विथ रेशियो 3:2, 4:3, 5:4, तो ये एक जनरल पैटर्न है। जबकि टाइप 2 में नो प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआई इंटरवल, तो वो इस तरह से नहीं बढ़ता है। टाइप 1 में अ बेनाइन रिदम दैट जनरली रिफ्लेक्ट अ ब्लॉक एट द एवी नोड, तो ये एवी नोड के ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और बेनाइन है। अ ब्लॉक आफ्टर एवी नोड आइदर एट द बंडल ऑफ हिज और इट्स ब्रांचेस, तो जब एवी नोड के पास प्रॉब्लम होगा तो वो टाइप 1 है। जब फर्दर एवी नोड से आगे बंडल ऑफ हिज में या फिर उसके ब्रांचेज में अगर प्रॉब्लम है तो वह टाइप 2 है। मोबिट्स टाइप 1 का प्रोग्नोसिस गुड है, जबकि टाइप 2 बैड प्रोग्नोसिस, हायर रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू अ 3rd डिग्री एवी ब्लॉक। तो मोबिट्स टाइप 1 धीरे धीरे ऊपर जो एरो है वो साइज बढ़ रहा है, दैट इज पीआई इंटरवल बढ़ रहा है, और जो स्टार मार्क है यानी कि वहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब है। जबकि मोबिट्स टाइप में ये 3:1 यानी कि पहले पी वेव है फिर फर्दर पी वेव है, बट क्यूआरएस का बात करें तो पहले में क्यूआरएस है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फिर फोर्थ में, दैट इज़ 3:1। ये हर 3 वेव के बाद एक क्यूआरएस बन रहा है। हर्ट ब्लॉक, कांस्टेंट पीआई इंटरवल एंड वेरिएबल पीआई इंटरवल। कांस्टेंट पीआई इंटरवल में 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2, और वेरिएबल पीआई इंटरवल में 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 एंड 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। Question number 57. Dyspnea accompanied by cough with production of thick brownish plugs of mucus is typically found in allergic bronchopulmonary aspergillosis, bronchial asthma, chronic bronchitis, pneumococcal pneumonia. And then says allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergic bronchopulmonary aspergillosis, mucus plugs leading to coughing fits, pneumonia consolidation एंड ब्रीथलेसनेस, ये सारा सिम्टम इसका है। क्वेश्चन नंबर 58. A 65-year-old male with a history of exertional dyspnea and chest pain developed syncope while walking. Examination revealed a slow rising low volume carotid pulse and an ejection mid-systolic murmur. Most likely diagnosis is aortic regurgitation, aortic stenosis, mitral regurgitation, mitral stenosis. And then says aortic stenosis. Aortic stenosis में exertional dyspnea होगा, exertional syncope होगा, dyspnea यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा, syncope यानी कि अनकॉन्शियसनेस होगा, angina यानी चेस्ट पेन होगा, ejection systolic murmur यानी कि सिस्टोल के समय मर्मर सुनाई देगा, एंड स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स, तो कैरोटिड पल्स जो होगा वो स्लो होगा। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर यानी कि जब वेंट्रिकल, जब सिस्टोल का बात कर रहे हैं तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल का बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल हो रहा है उसमें जब कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, इजेक्शन ब्लड इजेक्ट कर रहा है उस समय मर्मर होगा, यानी कि ब्लड बाहर निकलते समय। अगर वो इजेक्टोल के समय होगा तब वो ऑर्टिक रिगार्टेशन होगा क्योंकि ब्लड बैकफ्लो होता है, बट सिस्टोल यानी कि जब ब्लड बाहर निकल रहा है तो जब स्टेनोसिस रहेगा, ऑर्टिक स्टेनोसिस, ओपनिंग बहुत छोटा होगा जिससे कारण कि ब्लड प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे कारण एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, दैट इज इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। सो द आंसर इज ऑर्टिक स्टेनोसिस। क्वेश्चन नंबर 59. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? A. Changes in large airways cause cough and sputum. B. Mucus gland enlargement and goblet cell hyperplasia cause airflow limitation. C. Major site of increased resistance is in airway less than 2 mm in diameter. D. Central acinar emphysema is frequently associated with cigarette smoking. These are the options. And then says changes in large airway causes mucus, cough and sputum.
Major site of increased resistance is in airway less than 2 mm diameter. Centriacinal emphysema is frequently associated with cigarette smoking. Changes in large airways cause cough and sputum. ये स्टेटमेंट सही है. Cigarette smoking often results in mucus gland enlargement and goblet cell hyperplasia. तो म्यूकस सेल इंलार्जमेंट होता है. गॉबलेट सेल यानी कि ग्लास के शेप का वो सेल होता है, इसलिए उसको गॉबलेट सेल बोलते हैं, और उससे म्यूकस सिक्रीट होता है. तो गॉबलेट सेल का अगर हाइपरप्लेसिया हुआ तो म्यूकस जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा. बट दिस abnormalities आर नॉट रिलेटेड टू एयर फ्लो लिमिटेशन. बट इसके कारण एयर फ्लो का लिमिटेशन नहीं होता है. सो म्यूकस ग्लैंड इनलार्जमेंट एंड गॉबलेट सेल हाइपरप्लेसिया कॉज एयर फ्लो लिमिटेशन. ये स्टेटमेंट गलत है. स्मॉल एयरवेज. The major site of increased resistance is in most individuals with COPD is in airways less than 2 mm diameter. तो COPD यानी chronic obstructive pulmonary disease, इसमें एयरवे जो 2 mm से कम डायमीटर का है वहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है. ये स्टेटमेंट सही है. सेंट्रिएसिना एम्फाइसेमा द टाइप मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग. ये स्टेटमेंट भी सही है. Question number 60. Stroke manifesting with few sensory symptom result from infection of genu of internal capsule, posterior limb of internal capsule, ventral pons, ventral posterior lateral nucleus of thalamus. And then says ventral posterior lateral nucleus of thalamus. Stroke, pure sensory stroke from an infarct in ventral thalamus. तो ये ऑप्शन सही है. मोस्ट कॉमन स्मॉल वेसल स्ट्रोक सिंड्रोम्स, लेकिन जो इन्फेक्ट होगा तो प्योर मोटर हेमिपेसिस अगर पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में इन्फेक्ट हो, और पोन्स द फेस, आर्म, लेग, ये सारा अफेक्टेड होगा. तो अगर प्योर मोटर हेमिपेसिस यानी कि हाफ साइड में पैरालिसिस यानी कि पार्शियल पैरालिसिस होगा, कब होगा? जब पोस्टीरियर लिम्ब इंटरनल कैप्सूल का अफेक्टेड हो या फिर पोन्स अफेक्टेड हो. प्योर सेंसरी स्ट्रोक वेंट्रल थैलेमस के कारण. एटैक्सिक हेमिपेसिस वेंट्रल पोन्स और इंटरनल कैप्सूल के कारण. डिसआर्थरिया बोलने में डिफिकल्टी होगा. एंड अ क्लमजी हैंड और आर्म, वेंट्रल पोन्स और इन द जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल. 61. थॉट ब्रॉडकास्टिंग इज नोन टू बी एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अल्कोहलिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज, एंजाइटी डिसऑर्डर, schizophrenia. And the answer is schizophrenia. Schizophrenia, the delusional belief that their thoughts are being withdrawn from them and perhaps broadcast to others. यानी कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका जो थॉट है वो किसी को पता चल रहा है और वो सबको बता रहा है. तो ये फीलिंग schizophrenia में होता है. Question number 62. A middle-aged female presented with intermittent pain and swelling in finger joints and photosensitive rash on face, detection of which and autoantibody is most important for diagnosis in above case. Options are anti-C1q antibodies, anti-nuclear antibodies, anti-RO antibodies, anti-SM antibodies. And the answer is anti-nuclear antibody. ANA जो कि SLE में मिलता है, systemic lupus erythematosus. Swelling and tenderness in joints and or tendons, most commonly in hands, wrists, knees. Rash often accompanies flare of systemic disease. Subacute cutaneous lupus erythematosus consists of scaly red patches. ये फोटोसेंसिटिव होता है. ये सारा सिम्टम SLE का है. डायग्नोसिस के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज ANA आर पॉजिटिव in SLE. Question number 63. Which of the following statement regarding bronchial asthma are correct? Peak incidence of asthma is in childhood. Lower level of infection in early childhood increases the risk of asthma. Allergic reaction to food leads to increased asthma symptoms. Exercise is a common trigger of asthma in children. The most common allergen to trigger asthma are pollens. These are the options. And the answer is peak incidence of asthma is in childhood. Lower level of infection in early childhood increases the risk of asthma. Exercise is a common trigger of asthma in children. Asthma can present at any age with a peak age of 3 years.
ये स्टेटमेंट सही है, चाइल्डहुड में होता है। लोअर लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन मे बी फैक्टर इन एफ्लुएंट सोसाइटीज़ दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एजमा। तो अगर इन्फेक्शन का कम केसेस रहे तो वैसे केस में एजमा चांसेस बढ़ जाता है। द रोल ऑफ डाइटरी फैक्टर इज़ कंट्रोवर्शियल। डाइट का रिलेशन है या नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है एजमा केस में। सो एलर्जिक रिएक्शन टू फूड लीड्स टू इंक्रीज एजमा सिम्टम, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सरसाइज इज अ कॉमन ट्रिगर ऑफ एजमा पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, ये स्टेटमेंट सही है। एलर्जन हाउस डस्ट माइट, जो हाउस डस्ट माइट है वो सबसे कॉमन एलर्जन है। मोस्ट पेशेंट विद एजमा इन एफ्लुएंट कंट्रीज आर एटोपिक यानी कि एलर्जिक with allergic sensitization in the house dust mite, dermatophagoids, pteronosinus and other environmental allergen. The most common allergen to trigger asthma are pollen, ये स्टेटमेंट गलत है। अदर्स में है सच एज एनिमल फर एंड पॉलेंस, बट जो मोस्ट कॉमन है वो हाउस डस्ट माइट्स है। क्वेश्चन नंबर 64, द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस इज ए 12 lead ECG at rest, B chest X-ray, C coronary arteriography, D exercise ECG. And the answer is exercise ECG. A 12 lead ECG recorded at rest may be normal in patient with typical angina pectoris. तो हो सकता है कि जो रेस्ट वाला ECG है उसमें वो नॉर्मल हो, इसलिए स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। दैट इज़ ECG करेंगे, एक्सरसाइज ECG वो ट्रेडमिल पे होगा। A 12 lead ECG before, during and after exercise usually on a treadmill, तो वो ट्रेडमिल पे किया जाता है, जिससे कि जो कंडीशन है वो स्टेबल एंजाइना है, तो एग्जर्शन से उसको प्रॉब्लम होगा बट नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होगा, तो ये डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्ट्रेस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 65, द CSF एनालिसिस ऑफ पेशेंट रिवील्स WBC काउंट मोर देन 1000 per microliter. The most likely cause is bacterial meningitis, fungal meningitis, tuberculous meningitis, viral meningitis. And the answer is bacterial meningitis. तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो WBC है वो मोर देन 1000 होता है पर माइक्रोलीटर। कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस बेसिकली दो तरह का है, इन्फेक्टिव एंड नॉन इन्फेक्टिव, इसको स्टेराइल भी कहते हैं। इन्फेक्टिव फर्दर है बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन और पैरासाइट के कारण, एंड फंगल। नॉन इन्फेक्टिव में मैलिग्नेंट डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 66, अ मिडिल एज्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद persistent प्रोडक्टिव कफ विद प्रोडक्शन ऑफ थिक टेनेसियस स्प्यूटम, एग्जामिनेशन रिवील्स wheezing on lung auscultation and clubbing of fingers. Her chest X-ray shows tram track sign. The most likely diagnosis is bronchial asthma, bronchiectasis, chronic bronchitis, hypersensitivity, pneumonitis. And the answer is bronchiectasis. Bronchiectasis is permanent dilatation of bronchus. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ कहा जाता है कि कपफुल अमाउंट ऑफ कफ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कफ होता है, स्प्यूटम होता है। सो परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ विथ ऑनगोइंग प्रोडक्शन ऑफ थिक टेनेसियस स्प्यूटम, wheezing on lung auscultation, क्लबिंग ऑफ डिजिट्स यानी कि जो फिंगर्स है उसमें क्लबिंग होगा, प्रेजेंस ऑफ ट्राम ट्रैक यानी कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है या फिर ट्राम का पटरी होता है, दैट इज ट्राम ट्रैक, इंडिकेटिंग डायलेटेड एयरवेज इज कंसिस्टेंट विद ब्रोंकेक्टेसिस। चेस्ट एक्सरे में कुछ चीज़ें जो कि ब्रोंकेक्टेसिस के लिए स्पेसिफिक है, लाइक रिंग ओपेसिटी, वहाँ पर जो ओपेसिटी होगा वो रिंग के शेप का होगा, ट्राम ट्रैक यानी कि पैरेलल लाइन होगा, फिंगर इन ग्लव साइन, ये सब मिलेगा। चेस्ट सीटी स्कैन में डायलेटेड ब्रोंकस और सिग्नेट रिंग साइन मिलेगा। सिग्नेट रिंग साइन यानी कि जो एक टिपिकल रिंग है, लाइक एक गोल रिंग है उसके ऊपर स्टोन होगा, उसको सिग्नेट रिंग कहते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच है वो छोटा रहेगा और जो एयरवे है वो डायलेट हो जाता है, इसलिए वो बड़ा दिखेगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में देखा है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ का होता है, बट ब्रोंकेक्टेसिस में जो एयरवे है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, जिसके कारण के सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिलेगा। ट्राम ट्रैक साइन, डायलेटेड एयरवेज एज नॉन टेपरिंग पैरेलल ट्राम ट्रैक।
नॉर्मली क्या होता है कि जो पैसेज है वो दूर जाते जाते और पतला होने लगता है, इट यूज टू टैपर्स, बट इसमें पतला ना होकर के वो पैरेलल चलता जाएगा, इसी कारण इसको ट्राम ट्रैक कहते हैं। ट्राम ट्रैक साइन, वो कंटिन्यूअस पैरेलल लाइन दिखेगा। ट्री इन बर्ड पैटर्न, a pattern seen on thin section chest CT in which centrilobular bronchial dilatation and are filled by mucus pus or fluid resembles a budding tree, जैसे पेड़ में से बर्ड्स निकल रहा है चारों तरफ, उस तरह का अपीयरेंस होगा। सो ये ट्री इन बर्ड अपीयरेंस है कि एक रूट है उसके आसपास से ब्रांच निकल रहा है स्टेम से। सिग्नेट रिंग साइन, dilated bronchus and accompanying pulmonary artery branch are seen in cross section. The bronchus and artery should be of the same size, but वो सेम साइज ना होकर के जो एयरवे होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस के जैसा होता है। सो सिग्नेट रिंग साइन, जो बड़ा सर्कल है वो एयरवे है, दैट इज़ ब्रोंकस, और जो छोटा डॉट है यानी कि रिंग पर डायमंड के जैसा वो पल्मोनरी आर्टरी है। सो नॉर्मली ये ऑलमोस्ट सेम साइज़ का होता है, बट ऊपर फिगर में भी है, जो लेफ़्ट साइड का फिगर है वो नॉर्मल है और जो राइट साइड का फिगर है वो सिग्नेट रिंग साइन है। तो नॉर्मली दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज़ का होता है, बट ब्रोंकिक्टेसिस में ब्रोंकस का साइज़ बड़ा हो जाता है। फिंगर इन ग्लव साइन, एयरवे फिलिंग बाय म्यूकॉइड सिक्रेशंस इन सेंट्रल एयरवे एंड टिपिकली रेडिएट्स फ्रॉम हाइलम टू द पेरिफेरी, इसको ब्रांचिंग ऑपेसिटी भी कहते हैं। तो ब्रांचिंग कैपेसिटी इन लेफ्ट अपर लंग, जिसको कि फिंगर इन ग्लव साइन भी कहते हैं, जिसमें कि वो थिक एंड फिंगर जैसा दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 है, जिसमें कि अलाइड सब्जेक्ट 66 क्वेश्चंस एंड होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स 54 क्वेश्चंस, जो कि दूसरे वीडियो में है। अलाइड सब्जेक्ट का वेटेज देखा जाए तो एनाटॉमी 8 क्वेश्चंस, फिजियो 4, पैथो 9, एफएमटी 4, सर्जरी 6, ऑब्सकैनी 12, पीएसएम 8, पीएम 15, यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो पीएम से है, और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ऑब्सकैनी है, जिससे कि 12 क्वेश्चन पूछा गया है। रेफरेंसेस, बीडी चौरासिया फॉर एनाटॉमी, सेमुलिंगम फॉर फिजियो, रेड्डी फॉर एफएमटी, हर्ष मोहन पैथो, डीसी दत्ता ऑब्सकैनी, के पाक पीएसएम, पीएल ढिंगरा ईएनटी, मणिपाल सर्जरी, डेविडसन हैरिसन पीएम, और बाकी इंटरनेट। थैंक यू फॉर योर टाइम।